Hello, Suman sir. Yeah, I think, okay, I'm also audible and your voice is okay. I'm audible, and we can talk about. We can continue, and we have roughly 30 minutes to discuss, right? Yeah, And we can keep the last 5 minutes for. I would like to wind up in 20-25 minutes, and then 5 minutes discussion. And, okay. okay. Yeah. So see, you can do the slide share. Yeah, just wait. The DMI methodology was something that here is the slide is okay. 9th number slide. Okay. 9th. Okay. Previous. Okay. 9th. I think this one. See, whenever you talk about this particular, define, measure, analyze, improve, and control. So I would like to just discuss little bit about this. Not much. Yes. I would only
when what we define in the DMAIC methodology, this is the methods or tool which will help you to achieve the Six Sigma, and how the various, there are 5 stages or 5 forks which you need to have to achieve the Six Sigma. So the first stage is defining. And here what you define, which is little not legible in your slide, which we have shared, so due to some technical sorting. This is once again a deviation from the expectation of the quality. It should have come, but anyways, then we will highlight. Bold. Black. Oh, that's perfect. Suman sir is like, this particular is improve, what Suman sir has just done it. Okay. This define is like we identify, prioritize, and select the right project. We are identifying what identification of the problem, or what we have to, what is my scope, what is my limitations. Like we have defined it. If this session will be conducted in two breaks, because Zoom gives you 40 minutes air time in one go. So 40 minutes and then 40 minutes and then break, and then one more 40 minutes and then conclude. That's how we are. This we defined. This will be the link, and you are defining, and then how. Now this measure, and this is problem identification, and this is related to need. Why there is a requirement for quality and all, and where there is a requirement, where we are finding certain defects or certain, or as a management philosophy, everybody has to be like associated with it. This is defining is my identifying and priorities. Like everything we cannot focus. As a philosophy, we buy that, ठीक है कि ये अच्छा होना चाहिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होना चाहिए. बट आप उसको फिर भी आप डिफाइन करते हैं कि ये स्कोप है, इसमें ऐसा इंप्रूव करेंगे, इतना होगा, जो भी है. और उसके बाद क्या है, ये डेफिनेशन हुआ. इसको प्रॉब्लम जहां पे पेन एरिया उसको, या जहां पे रिक्वायरमेंट है उसको, या जहां पे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो. अब मेजर में क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे वाइपर होना चाहिए तो आवाज नहीं करना चाहिए कार में से, फॉर एग्जांपल, है ना. अब क्लास जो हो रहा है जूम में, तो इसमें नॉइज में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नॉइज नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना. कम्युनिकेशन हमारा बात आप तक अच्छा से पहुंचे, जो भी है. अगर इसमें मान लो कि द साउंड, इसमें आप मेजर कर रहे, साउंड क्वालिटी वाज गुड, उसमें आप रेट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये एक तरह का मेजरमेंट हो गया ना. साउंड क्वालिटी वाज नॉट गुड, से फॉर एग्जांपल, और द स्लाइड्स वर नॉट अप टू द मार्क, और व्हाटएवर, मतलब XYZ आप उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. तो प्रोसेस पैरामीटर्स आप डिफाइन कर रहे हैं. देखिए, एक चीज आपको, आप लोग जानते होंगे कि एक थ्योरी होता है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन. एक थोड़ा सा हल्का सा, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हल्का सा चर्चा कर लेते हैं, टच बेस, क्योंकि वो जरूरी है आपके ओवरऑल कंसेप्चुअल इंप्रूवमेंट के लिए. एक फिलॉसफी में एक क्वेश्चन होता है कि एपिस्टेमोलॉजी में बोलते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. उसमें जो टिपिकल फिलॉसफी के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है कि अगर कहीं पे आग है, कहीं पे धुआं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आग है. ठीक है. तो इनपुट एंड आउटपुट का जो रिलेशनशिप है, जिसको वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं ना आप लोग, उसको वही वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स है. तो ये जो फंक्शन है, ये थ्योरी ऑफ कॉजेशन है. तो आपका इनपुट ही आउटपुट में कन्वर्ट होता है. तो जिसको बोलते हैं ना गार्बेज इन तो गार्बेज आउट. बच्चे बेकार आएंगे तो बेकार प्रोडक्ट बनेगा, टीचर बेकार आएंगे तो बेकार आउटकम होगा. अब टीचर भी अच्छे हैं, स्टूडेंट भी अच्छे हैं, और मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो सब चीज अच्छा होगा. ठीक है. अब मैनेजमेंट अच्छा है, टीचर अच्छा है, स्टूडेंट खराब है, तब भी खराब आउटकम निकलेगा. टीचर और स्टूडेंट अच्छे, मैनेजमेंट खराब है, तब भी खराब आउटकम निकलेगा. तो तीनों फैक्टर में एक वेटेज है. से फॉर 33% का एक हम लोग इसको मेजरमेंट का एक तरीका. तो यही थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो होता है ना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. अगर कोई रो रहा है तो उसको पिटाई पड़ा है, काइंड ऑफ, हो सकता है कि उसको कांटा भी चुभ गया हो. मतलब ये कोई ना कोई कारण है. अब ये जो कारण है, अब उसको आपको कंट्रोल करना है. तो उसमें भी देखिए, एक पैरेटो प्रिंसिपल होता है. एक और हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. हम आपको एकदम एग्जैक्टली डिटिग्रिटी स्टार्ट्स में नहीं जा रहे हैं. एक पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है ना, कि जैसे आप देखिएगा कि आप अपनी फैमिली में देखेंगे, उसमें 80-20 का रेशियो चलता है.
आई होप हिंदी से कोई परेशानी नहीं है सुमन सर, हमको लगता है कि हम लोग बच्चों से ज्यादा बढ़िया कनेक्ट कर पाएंगे अगर थोड़ा सा हिंदी बोले, राइट? Yeah, yes, हेलो। yeah, yeah. Yes, हाँ सर, ठीक है, तो देखिए पेरेटो, हाँ fine. हिंदी बोलने से कुछ फर्क नहीं है ना, है Hmm. थोड़ी It's बहुत good. हमको लगता है कि कुछ आराम से अपनी भाषा में बातचीत हो जाएगी। जी. अब देखिए पेरेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि 80-20 का रेशियो होता है, तो 80% ऑफ द फैक्टर इज कन्वर्टेड इनटू लाइक 20%। आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि जो 80% ऑफ द रेवेन्यू है वो आता है 20% ऑफ द मेन्यू, जो चालू आइटम जिसको बोलते हैं। नहीं तो जो घर के बगल वाला जो ढाबा वाला होता है वो लीन मेथड लगाता है। क्या करता है कि समोसा, चाय, पकौड़ी, जलेबी और सेव, बुंदिया, मतलब 5 आइटम रखता है। वो बड़का सा नहीं, मतलब कि एकदम कोई ऐसा कोई एग्जॉटिक आइटम नहीं रखता है। सूप ऑफ द ब्लांच ऐसे करके कुछ नहीं रखता। उसको पता है ये रखेंगे तो बिकेगा नहीं, तो इसको अननेसेसरी को घटाता। तो ये पेरेटो आप ही के घर में देखेंगे कि आपके घर में कमाने वाले कितने हैं, खाने वाले कितने हैं। तो बाबूजी कमा रहे हैं, बाकी में मम्मी हैं, और आप 2 भाई हैं, 3 भाई है, 3 भाई बहन है या 2 भाई बहन है, सब उन पर डिपेंडेंट है। एक एवरेज मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। या आपका जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, तो आप उसमें देख लेगा तो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर, अर्निंग मेंबर जो होता है, और जो फीडिंग मेंबर होते हैं, उसका रेशियो हमेशा 22:8 का हमेशा रहेगा। तो कमाने वाले 2 होंगे, एक अगर 5 फैमिली मेंबर है तो एक कमा रहा है, 4 उस पे खा रहा है, ठीक है, एक भी खा रहा है, मतलब तो 20% का रिप्रेजेंटेशन एक एवरेज होता है। तो ये मैनेजमेंट इसको पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें आप उसमें भी ये क्वालिटी में और प्रोडक्शन में उसको लेते हैं कि आप कभी ओवर प्रोडक्शन मान लीजिए कर दिए। एक आप 400 मीटर दौड़ने लायक है, आपको मैराथन दौड़ा देंगे तो आप अगले बार हो सकता है कि आप कोलैप्स कर जाए, हार्ट अटैक हो जाए। तो क्या है ना, ओवर प्रोडक्शन भी नहीं करना चाहिए, किसी सिस्टम को ओवर बर्डन भी नहीं करना चाहिए। और किसी को भाई आप 2 किलोमीटर चल सकते हैं और आप 100 मीटर आप हमको चला रहे हैं ना, तो मतलब जैसे आप एक बाइक खरीदे जो 500 सीसी का है, ठीक है, और आप स्पीड चला रहे हैं, वो सिटी में आप उससे राइड करते हैं, और सिटी में राइड करते हैं तो आप जो स्पीड है आप उसको 40 से ऊपर जाते ही नहीं है। तो आप जो टॉप स्पीड 300 किलोमीटर का लेकर के घूम रहे हैं, 250 किलोमीटर का, आपके पास रोड ही नहीं है, तो आप उसके लिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं? मतलब एक सेंसिकल रैशनल थिंकिंग में ये होता है। तो ये दो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो मैं आपको बताया। थ्योरी ऑफ पोजीशन बोला, पेरेटो प्रिंसिपल बोला, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी बोला। तो ये 3 जो एक कॉन्सेप्ट है, आपको एक बेसिक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल या मेजरमेंट में या ओवरऑल हर जगह पे कॉमन सेंसिकल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आप क्या मेजर कर रहे हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्यों एनालाइज कर रहे हैं, इस चीज का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी में डिफाइन कर लिए क्या हमारी प्रायोरिटीज है, क्या हमारा नीड है, मेजर कैसे करेंगे, क्या जो थ्योरी ऑफ पोजीशन है, थ्योरी ऑफ जो क्या फैक्टर्स क्या इनपुट आउटपुट को देगा। तो हमारे यहाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, स्टूडेंट का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ तो क्यों नहीं अच्छा प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो हो सकता है कि बच्चे को जो स्किल रिक्वायरमेंट था कहीं ना कहीं तो गैप है ना, तो वो मेजर करने का वो तरीका है। तो हम क्या क्या चीज पैरामीटर्स लेंगे वो है। अब एनालाइज है, जब आपके पास आपने डेटा कैप्चर कर लिया तो मेजर किया, तो आपने देखा कि भाई स्टूडेंट का जो है प्लेसमेंट वाली सोच करके आई, प्लेसमेंट ऑफिसर है बहुत अच्छा पिच कर दिया बच्चों को, और बोला कि हमारे बच्चे इतना बढ़िया है, एकदम स्टैटिस्टिकल टूल में बढ़िया है, एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एकदम एक्सपर्ट हैं, और जो कॉर्पोरेट में जिस लेवल का स्किल सेट रिक्वायर्ड है, वो प्लेसमेंट वाला आया 1 करोड़ का पैकेज लेकर के और आपको 10 लाख से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि स्किल सेट जो वो प्लेसमेंट ऑफिसर कम्युनिकेट किया था वो जब आकर के देखा तो नहीं हुआ। तो अब इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे गैप है इस चीज को, और कहाँ पे हमको इंप्रूव करने की जरूरत है। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड टू एनालाइज कैसे करना है। तो स्टैट्स जो है एक बढ़िया है कि भाई हम एक गलती कर सकते हैं, लेकिन मतलब हर बच्चा को इस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अभी बोल देते हैं कि ऑडियो का क्वालिटी, एक बच्चा झूठ बोल सकता है, 2 बच्चा झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर 7-8 बच्चा, आप लोग मान लीजिए 50 पार्टिसिपेंट है, वो देख रहे हैं कि भाई सबको ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड हो गया, इंप्रूव है। जैसे नहीं होता है वोट दिया सब, अब 100 को 1000 रुपए का नोट पकड़ाए होंगे ना, या 500 रुपए का नोट पकड़ाएंगे वोट में, जिसको मैनिपुलेशन है। तो एनालाइज करने में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन को रिड्यूस करता है। जैसे टीआरपी घोटाला के बारे में आप लोग सुन रहे हैं,
तो टीआरपी घोटाला क्या है? मैनिपुलेशन। उसको पता है कि स्टैट्स में कहाँ पे कैप्चर हो रहा है, तो स्टैट्स में मैनिपुलेट भी होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जहां पे आपका सैंपल साइज सही है, रिप्रेजेंटेटिव है, बायस कम है, तो आप उसको मान सकते हैं कि ये ठीक ठाक है। अब आपने इंप्रूव कर दिया, एनालाइज करके आपने आइडेंटिफाई किया कहाँ पे गैप है, तो आप उसको इंप्रूव करेंगे कि भाई कैसे इंप्रूव करेंगे। तो इंप्रूव करने का तरीका है कि भाई यहाँ पे ये गैप है, तो यहाँ पे हो सकता है, जैसे से फॉर एग्जांपल मतलब एक तो एक कार का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, और उसमें जो वाइपर है उसमें आवाज आता है या खड़खड़ाहट है या शीशा को घिस देता है, तो प्रेशर ज्यादा है कम है। और उसमें भी आप देख रहा है कि एक एक टाटा मोटर्स है या मारुति सुजुकी का शोरूम है, अब एक या नैनो का प्रोडक्शन प्लांट है, कुछ भी है, एक एक पर्टिकुलर कार का एक जगह प्रोडक्शन होता है टाटा मोटर्स में, इंडिका का मान लो। अब वहां से निकल के आ रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि 5% प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसमें। तो उसके लिए जो मशीन यूज हो रही है, हो सकता है जितना भी उसका असेंबली लाइन हो, असेंबली लाइन जहाँ पे कार जुड़ती है, तो कार जो जुड़ रही है वहां पे वो देखा कि भाई 20% में फॉल्ट आ रहा है। अब एनालाइज करेगा, अब उसके बाद देखो 100 में 5% में फॉल्ट आ रहा है। अब हो सकता है कि उसके बाद फिर बैकवर्ड कैलकुलेट किया, तो जो विंडशील्ड लगाने वाली वो जो वाइपर लगाने वाली मशीन है, उस यूनिट में 20 ठो काम कर रहा है, 20 यूनिट्स है, तो 20 डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स और इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मशीन में फॉल्ट होगा, तब ना 5% का फॉल्ट आएगा। आई होप तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्या हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये इंप्रूव करने का, तो अब उस वो जो वो फॉल्ट को या तो ठीक कर लो या उसको मशीन को रिप्लेस कर दो, तो तुम्हारा क्वालिटी इंप्रूव हो गया। अब ये क्या है कि अब ये जो है, ये मतलब एक मेथोडोलॉजी है कि कैसे क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो स्टैट्स तुमको क्या होता है कि तुम्हारा मार्कशीट होता है ना, तो तुमको पता चलता है ना कि भाई कहाँ पे गलती हो रही है, मैथ्स में ज्यादा पढ़ना है कि फिजिक्स में ज्यादा पढ़ना है कि कंप्यूटर्स में ज्यादा पढ़ना है। तो बस उसी तरह का इंप्रूव एनालाइज किया, तो पहले डिफाइन किया कि भाई ये पैरामीटर होगा, मार्कशीट हुआ, एनालाइज किया कि भाई ना इसमें ग्रेड कम है, इसमें इंप्रूव का जरूरत है। तो अगला मिड सेमेस्टर में तुम अपना किए या सेशनल है, यूनिट टेस्ट है, उसको टोटल मिला करके अपना इंप्रूव कर लो, तो फाइनल एग्जाम में टोटल मिला करके तो कंट्रोल उसी का है कि भाई हमको मैथ्स में हो रहा है तो 1 घंटा हम कम मैथ्स पढ़ रहे हैं, और टिपिकली मैथ्स को 1 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब दूसरा बात क्या है कि कंट्रोल जो होल्ड द गेंस, मतलब यही है कि कंट्रोल करना कि, और गेंस को एक सस्टेन भी एक चीज होता है कॉन्सेप्ट। सस्टेन मतलब जो है कि आज हम इंप्रूव किए तो अगला बार जैसे 10th में 90% नंबर लाए तो 12th में जाकर के 50% नहीं हो जाए, है ना, तो उसको कंट्रोल करना, उसको गेन को होल्ड द गेन बोलते हैं, उसको सस्टेनेबिलिटी। तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, जो प्यूनिटिव एक्शन होता है, पनिशमेंट होता है, बाबूजी पॉकेट मनी बंद कर देता है, आज से तुम घर से बाहर निकलना बंद, बाइक लेकर के उड़ते रहता है, ये सब क्या है ना, इसीलिए तुम्हारा नंबर घट गया है, व्हाटएवर, ये बहुत ज्यादा फुचका खाने जाती है, कुड बी XYZ, अब इसको रोक देना है, तो ये सब कंट्रोल मैकेनिज्म, प्यूनिटिव एक्शन है, ठीक है। तो फंडामेंटली उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यही है बाबू, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यही है। अब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा टूल बॉक्स में हम तुमको आपके पास क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दीजिए सुमन सर, हमको लगता है कि कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। तो एक आता है एनोवा, ठीक है, फिर बॉक्स प्लॉट होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। अब इसका एक एक चीज में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 2-4 चीज तुमको बताते हैं कि क्या होता है। 40, ये 1 o'clock तक है ना सुमन सर? Yes, sir. 1 o'clock, अच्छा ठीक है, हम एक दो बताते हैं। देखो, एक स्टैटिस्टिकल टूल है एनोवा, एक होता है एनाकोवा, ठीक है। अब ये उसमें बॉक्स, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे आप एनालाइज कर पाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि हम लोग जैसे आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक टीम बैठ गए और टीम बैठ गए और डिस्कशन करेंगे हमारे कंपनी में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। तो ये एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग, कहाँ पे दिक्कत हो सकता है, तो उसमें लेबर को भी रिप्रेजेंट कर लिया, टॉप मैनेजमेंट भी हो गया, और मतलब स्टूडेंट टीचर और मैनेजमेंट पेरेंट टीचर्स मीटिंग टाइप का ब्रेनस्टॉर्मिंग कि कहाँ पे बच्चे को इंप्रूव करना। आपके घर में आप लगता है टीवी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बच्चा मोटा क्यों हो रहा है, तो टीवी के साथ पॉपकॉर्न खा रहा है, सो एग्जांपल लाइक दैट, बहुत ज्यादा क्यों खा रहा है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है, अच्छा ठीक है इसको इंप्रूव। ये जो डिस्कशन होता है डायनेमिक ना, अब इसमें बहुत सारे एक तो होता है जैसे कॉज इफेक्ट डायग्राम, जिसको सुमन सर एक डिसीजन ट्री बोलते हैं।
I know Suman sir has some paper publication on that decision tree. तो डिसीजन ट्री टाइप का जो चीज होता है ना कि क्या इनपुट है तो क्या आउटपुट है, जो फ्लो चार्टिंग होता है, डायग्राम होता है, इस तरह का चीज है। तो अब स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि भाई कोई भी आएगा, अगर तुम्हारे यहाँ विजिटर आएगा तो क्या है कि सबसे पहले वो गेट पे एंट्री करेगा, फिर उसका अभी जैसे कोरोना पीरियड में कि कोई भी रेस्टोरेंट जाएगा या कोई भी एटीएम जाएगा तो उसका टेम्परेचर लेता है, उसको हाथ सैनिटाइज करवाता है, मुंह में मास्क है तभी जा सकता है। तो दीज आर, ये क्या ना एक स्टैटिस्टिकल टूल है, मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूव करने का। तो कोरोना को फाइट करने में भी ये सब चीज लगता है। ये मत समझना कि ये जितना भी प्रोसेस है, आप देखो पेरेटो एनालिसिस है, वही जो 80-20 का हम लोग रेशियो की बात कर रहे थे, तो अब इस पे हम लोग ज्यादा रहेंगे तो मतलब हो जाएगा। इसका कोई भी टूल तुम लोग यूज कर सकते हो। जो एक बच्ची क्वेश्चन पूछी थी शायद दिव्या या क्या, कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन उसमें यही सब था, यही सारे टूल्स जो है ना, आप इसमें से कौन सा टूल सेलेक्ट करते हैं, क्या नहीं करता। आप झूठ मूठ का पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब इतना एनालाइज की कुछ काम ही नहीं है, खाली एनालाइज ही करते रह गए। तो आपको काम भी करना है, आपके पास कितने रिसोर्सेज उसको भी देखना है, ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट करना है, ये भी एक बड़ा सब्जेक्टिव डिसीजन है, डिस्कशन है, तब जाकर के बात होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए y इज द फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे जो हम लोग बात करें इसको भी अगर हाईलाइट, हाँ वेरी गुड। y क्या है, आउटपुट है, x जो है इनपुट है, ठीक है। डिफाइन जो है ना, ये जो देख रहे हैं मतलब एक प्रोजेक्ट फोकस, जो आप उसको एक चार्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे कि हाउ व्हाई डू यू हैव लाइक ना, जिसको बोलते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, आपको कितना लाइक मिला, आपने फेसबुक में पोस्ट किया तो आपको पता चलता ना कि आपको इसमें इतना लाइक मिला, इतना व्यूअर्स यूट्यूब में गए तो आपको पता चला कि कितने लोग देखे, आपको कितना लाइक मिला, कितना कमेंट आया। इससे आपको पॉपुलैरिटी का अंदाज मिलता नहीं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितना लाइक मिलता है, आप एक फोटो पोस्ट करते हैं आपको कितना लाइक मिलता है। तो ये सब चीज क्या है, ये सब मेजरमेंट है, आउटकम है। अब इसमें क्या है ना कि इसमें देखिए DMAIC है, इसमें y जो है आउटपुट है, x जो है इनपुट है, ठीक है। अब मेजर कैसे बने, कहाँ पे है, सेटिस्फैक्शन, प्रोसेस, प्रॉब्लम एंड सिम्टम, प्रोसेस आउटपुट, रिस्पॉन्स वेरिएबल। रिस्पॉन्स यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा मेजरमेंट होता है, आउटकम, ठीक है, ये इफेक्ट है। अब उसके बाद जो है मेजर जो है आउटकम है, इसी से हमको पता चलेगा ना कि बुखार है तो टेम्परेचर लिए तो बुखार है। बुखार बहुत सारे कारण से हो सकता है, उसका एनालाइज बाद में करेंगे कि मलेरिया है कि टाइफाइड है कि कोरोना है कि कुछ भी है। अब एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, ये जो चीज है ये इनपुट्स है ना, जिससे मेजरमेंट को, जैसे यहाँ पे जो अब यहाँ यहीं पे जो हम लोग बोले कि 100 मिलियन में हम लोग, इसमें हम लोग इंप्रूवमेंट कहाँ करेंगे, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल में करेंगे, ताकि हमारा वाई सेटिस्फैक्शन हो। ये वाई का कितना हमारा टारगेट है, वाई का जो टारगेट है हमारा, डेविएशन 3 पर मिलियन, डेविएशन पर मिलियन आउटपुट, डीपीएमओ बोल रहे थे ना, 3.4 पर मिलियन, मतलब 10 to the power 6। तो 10 इंस्टेंसेस जो है अपॉर्चुनिटी या आउटकम है। तो इतना इसको मेजर करने के लिए तो हमेशा इस चीज पे ए, आई और सी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और सर एक मैक्रो लेवल है कि क्या हम इंप्रूव करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जिससे वो डेफिनेशन है। तो ये if you have any question you can raise right now, otherwise we'll shift to lean, है ना। You understand why is the function of x, x is the input which is analyze, improve and control, y is the output which is like customer satisfaction, say for example। So like ये बच्चे को आपके कॉलेज में बच्चे को कैसा प्लेसमेंट हो रहा है, सबको मान लीजिए एक टारगेट रखते कि 50 लाख का प्लेसमेंट होना चाहिए, हाइपोथेटिकल बात करें, ठीक है। तो उसमें कहाँ पे है, तो उसमें 3 फैक्टर हम लोग जैसे नहीं बात कर रहे थे कि भाई टीचर, मैनेजमेंट, स्टूडेंट, है ना, तीन फैक्टर आ रहा है। तो यही है, AIC जो है वही है। और उसमें कहाँ पे इंप्रूव करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि हमको इनपुट, जो क्वालिटी ऑफ इनपुट ऑफ स्टूडेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, टीचर का क्वालिटी करना पड़ेगा, टीचर को ज्यादा फैसिलिटेट करना पड़ेगा, टीचर ने टू वर्क हार्ड। और टीचर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा, मे बी बेनिफिट्स, या उसको कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुड बी एनीथिंग, प्रॉब्लम कुड बी एनीथिंग। सो यू नीड टू एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल दोज मैकेनिज्म। और मैनेजमेंट का फिलॉसफी गड़बड़ हो, पैसा मनी मिंटर है, या उसको मतलब स्टूडेंट वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है, या वो शॉर्ट टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आया हुआ है, या उसका लॉन्ग टर्म विजन है, या एक आइडियलिस्टिक मैनेजमेंट, कुछ भी। तो these are certain parameters which you can always
twist and turn, and then you can improve why. Which is like, say for example, हमारा measurement है कि student happiness, parents happiness, वो हम character भी build करते हैं. Nation happiness, जैसे हमारे जो student हैं वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हैं. बड़े बड़े मतलब हो सकता है कि मनी माइंडेड बहुत ज्यादा नहीं, एक वैल्यू सिस्टम है उनके पास, एक नेशनलिटी है या कल्चर है, वो मतलब अपने पिता का सम्मान करता है. ऐसा नहीं कि 50 लाख सैलरी हो गई अब आपको गाली देना शुरू कर दी. नॉट लाइक दैट. सो could be, these are all the parent satisfaction, monetary gain, and total मिला के एक जो society concern for society and nation, so kind of something like that. So these are we can shift to next slide. See, this is माइक्रो व्यू एंड मैक्रो व्यू का ये एक एग्जाम्पल है. जैसे आप देखिए कोई विजनरी होता है ना, तो अच्छा. रजिस्ट्रेशन वाला लिंक एक बार और आप भेज दीजिए व्हाट्सएप पर. हाँ ठीक है. फिगर है मिनिमम 10 टाइम्स चांसेस है कि हो सकता है 10 टाइम्स. इज एवरी डेटा बीइंग कैप्चर्ड? these are some of the things, whether the state is manipulating or who is manipulating, or the machinery or people are not themselves reporting because हमको क्वारंटीन कर देगा, है ना, तो चुपचाप अपना पैरासिटामोल खाकर ठीक हो जा रहे हैं, उसमें 2-4 मर भी जा रहे हैं. तो काइंड ऑफ स्टफ लाइक दैट, यही टाइप का जो चीज है वो चीज है. तो विजन जो है ना, सो वी वुड लाइक टू कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सुमन सर, यही है मतलब स्कोप जिसको बोलते हैं, हायर स्कोप लोअर स्कोप, ये चीज इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए. तो आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में तो टोटल आप है कि अपना एक प्रोसेस का जो सब प्रोसेस है उसका आप आउटपुट देखते हैं कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन का देते हैं, पर सब प्रोसेस जो है वही एक लार्ज प्रोसेस को बनाता है ना. आपका हर यूनिट टेस्ट में अच्छा मार्क्स है, मिड टर्म में अच्छा है तब ना एंड टर्म में अच्छा आएगा, सारा सेमेस्टर में अच्छा है तब ना आपकी डिग्री का वैल्यूएशन अच्छा होगा, आपका नॉलेज स्किल एटीट्यूड सब अच्छा है तब ना आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा. तो यही है मतलब यू कैन ब्रेक अप इनटू दी स्मॉल स्मॉल ईटेबल पोर्शन. जैसे पूरा पिज्जा जो खाते हैं उसको कटवा करके खाते हैं ना, पूरा बड़ा पिज्जा मुंह में नहीं डालते ना, तो बाइट साइज पीसेस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वही चीज है. ठीक है. अब ये कहते हैं how Six Sigma and Lean, if these two philosophies or concepts are clubbed, can improve a lot. Lean में क्या होता है, देखिए क्या है ना कि सुमन सर has a particular weight, है ना, और एक Mr. X student, and I Suman sir is say for example 60 kg of weight, I am 100 kg of weight. So who will have a better endurance and physical stamina or delivery? You can understand. Or who can walk for 10 kilometers, say for example. Or I am traveling to Indore. I am being invited by your institute, and I am traveling. So I have 5 luggages, 5 bedding, or I have simply 1 backpack, and I'm traveling. So these are 2 of the things. Now, if you are a very important celebrity, or say for example, you are very busy professional, and you are going by flight from Indore to Delhi, and you have 1 check-in luggage and 1 hand luggage, which you are like simply carrying you. So you do not have to wait at this trip. जो वहाँ पे सामान जो मिलता है वहाँ पे तुम इंतजार नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा वहाँ पे 15 मिनट बच जाता है. तो फंडामेंटली क्या है, जो 15 मिनट हर मिनट का एक कॉस्ट है ना, आपका टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स. तो आपका जो लगेज है मेरा, if you are overburdened, if you are big giant organization, then it is different. So lean में fundamentally क्या होता है, there are many nonsense value. ऐसा नहीं होता है कि एक हम तुम लोग एक एग्जांपल बताते हैं, मतलब ये भी बड़ा सब्जेक्टिव होता है. अब गैंग ऑफ वसेपुर में मनोज वाजपेयी जो है डायलॉग दे रहा है कि जब उसका शादी होता है और उसकी वाइफ से वो बैठ करके बात कर रहा होता है, तो वो क्या डायलॉग देता है कि हमारे जीवन का एक ही मकसद है, बदला, है ना. अब क्या तुम्हारे would your father would like your son to have a badla as an ambition in life? Single purpose of life should be a badla. No, you don't want to be revengeful because it's a waste of resource. So it is a waste. Why should we, like a dog has barked on me, why should I bark back? That is a concept. The philosophically I'm talking about. So extra pound, extra luggages, extra processes, these are nonsense value.
मतलब वो क्या ना कि मंदिर में जाकर के कण कण में शंकर है, लेकिन क्या हर कण में तुम जाकर के साष्टांग थोड़ी हो जाते हो भाई? गए काशी विश्वनाथ तो वहां पे साष्टांग हो गए। तो बस वही चीज है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस चीज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, व्हाट इज द वेस्ट। एंड सो दिस इज, इससे क्या होता है कि आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, और जैसे बहुत सारे जब चीजें सिंप्लीफाइड होती हैं तब आपका जो आउटकम है वो भी सिंप्लीफाइड होगा, और यू विल हैव अ बेटर कंट्रोल एंड मेजरमेंट। सो फिलोसफिकली that is that is what we have. Lean method talks about that only. Okay, so X baggage where the waste is, you need to simply reduce. That talks about. So with along with the DMAIC or Six Sigma, if you are using lean philosophy combined with this both, then you have a better control. So this is a concept. I would like to, how would you get into lean? So this is a, we can get into this 5S slide. 5S slide, antidote to waste. So you need to have an eyes to identify the waste. So where we can reduce the process, where you can improve. So simply like you are going to a kitchen में आप जैसे मतलब lean में कैसे improve कर सकते हो? lean में चलो इसको 5S में ही हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सॉर्ट, आपके टेबल पे बहुत सारा चीज रखा हुआ है, बहुत सारा चीज यूटिलिटी के, बहुत सारा चीज यूटिलिटी के नहीं है, पर आपको साल में एक बार जो जरूरत पड़ेगा तो आप उसको, जैसे नहीं होता है कैश मेमोरी में, आपके कंप्यूटर्स वाले हैं ना आप लोग, तो कैश मेमोरी में क्या होता है, जो आपको डेटा ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वो कैश में है ना, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी है या डेटा है वो आपके रैम में है, और जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है वो आपके साटा में है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में है। अब ये जो प्रायोरिटाइजेशन है ना, यही सॉर्टिंग होता है कि आपको कौन चीज, आप जैसे अब दिल्ली जा रहे हैं, आप कहीं कॉलेज जा रहे हो तो पेन रखेंगे, पेंसिल रखेंगे, मोबाइल रख लिए, एक नोटबुक रख लिए, अपना लैपटॉप रख लिए, चले गए, उसके बाद चारों सारे टेक्स्ट बुक लेकर के नहीं जाएंगे ना, तो दिस इज व्हाट इज सॉर्टिंग। सो व्हाट इज नीडेड, कीप ओनली व्हाट इज नीडेड, get away from the waste, or keep it into backyard, not in access. Straight in a place for everything, and everything is in its place. Like like हर चीज को आप अगर ऑर्डर में रखते हैं तो आपको क्या होता है कि आपका टाइम बहुत बचता है। अब माउस को आप हमेशा, अगर आप राइट हैंड पर्सन है तो दाहिने साइड में रखते हैं ना कंप्यूटर का, और उसी को एकदम लैपटॉप के पीछे में रखेंगे। अब जैसे नमक, घर में किचन है, नमक है, तो आप क्या करते हैं कि आप ऐसा करते हैं कि नमक को लॉकर में बंद कर दिए, किचन वाला जो है ना उसका अलमीरा के लॉकर में बंद किया, ताला लगा करके पड़ोस वाली आंटी के पास चाबी छोड़ दी। यू डू दैट? यू डोंट डू दैट। तो इट इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, किचन में एकदम नमक जो एकदम बगल में रहना चाहिए, लाइटर जो है चूल्हा के बगल में होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट स्टेट where to place that things in a production or an operation, wherever you should have the things at place. Shine is like cleaning. It talks about shining and all. So standardize is like you should have a protocol, and whatever sustaining is, whatever you have achieved, you should have a sustainability. You should maintain that standard. So that is what I have to talk about in things. So we have some 6 minutes to conclude. So Suman sir, over to you. My availability is there. Hello. Yeah, am I audible now? Yeah, okay. So if anyone have a question, then you can send me through chat. And on behalf of you, I will ask Praveen sir. Secondly, I have given two link in your chat box. One is for registration and another is for your feedback. It is mandatory to fill both the forms because we can issue the certificate of participation only when we have this data with us. So again, we are coming back to data, and Praveen sir, I think after this session, it is sufficient to convince student that why we should study statistics. Whenever I am teaching, most of the time, not here only, but earlier also, usually students have a question that, sir, what is the implication of these kind of mathematics I have never used? So This I is think in DMIC, sir, you have to define that, yeah, defining why exactly. this So another students have
sufficient to be rationally motivation satisfied. today that not only for the engineering processes and all, if you are in a managerial position and if you are looking yourself uh, as a manager or a part of managing team, then your knowledge about statistics and these uh, intuitive concepts is required, and that is essential, and that will definitely foster the growth of your Meanwhile, career. got it, Suman sir. Meanwhile, I would like to simply cite one example. Meanwhile, if somebody is sending you a question, you can then and there interrupt me. I would like to mention some of the observation or what is happening in the current day organization or modern organization or the fresh startups of who has a student of a young brilliant child, and they are they are becoming the young generation are becoming more and more rational, very intelligent and smart, outsmarting. So how the Lean and Six Sigma methods are being utilized by these new startups and all. So I have certain examples like how to eliminate waste in Lean. There are many organizations which is only having an exterior wall. Canteen is one common for top management to labor. Everybody or whoever is working is at almost treating. Though no hierarchy, unnecessary hierarchy, they are also eliminating. So everybody is eating at the same place. There is no wall in the department. So these kind of things are there. That they are reducing their waste and resources at that level. So that is one of the observation I wanted to make. Yeah. Suman sir. Yeah. Thank you, Praveen sir, for your valuable insight. And this is just a information that I have to place before starting the sessions, but due to the time lag, we delayed it. We have with us Praveen Kumar, who is there at Central University of Jharkhand as a STEM professor. And he has almost 15 plus years of experience in marketing and meaning it's real life experience in marketing and research proceedings in this field. So, I am very pleased that you accepted my invitation. Uh, at this moment, if Prashant sir, if you are listening to me, could you please conclude and say, yeah, Prashant sir, if you are listening to me, then could you please? Prashant sir is not. It may not be. He may not be audible because asked to. Anyway, there may be the connectivity issue out there in this office. Okay, I we are know about to conclude, sir. before end. Time is getting short. Yeah. I So thank you so very much, much, and sir. I wish all the participants a good luck in their life. Keep rocking and be energetic and enthusiastic and positive. God bless. Thank you so much, sir. Yeah, at the very end, we have Amit sir is joining, and I think he may have something to conclude. We have last 1 minute with us. So yeah, Amit sir, if you have joined, could you please conclude? Or Prashant sir? Yeah, yes, thank you, sir. Okay, I think there may be an internet connectivity issue. Hello. Yeah, Hello, am I audible now? yeah. So we have last Suman sir, few seconds. All right. Praveen sir, thank you so much. This is Prashant, heading iNurture from Sage University. And I'm really thankful for such a valuable inputs that you have given to the students. And we will, hello. Yeah. Thank you so much, Praveen sir. We'll meet again. Thank you so much. It was a pleasure to be associated with you people. Thank you so much, God sir. bless to the students, and thank you so much, Prashant sir, Suman sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. And here, Suman sir, thank you so much for organizing such a good session. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you all. All right. Bye-bye. Have a nice day.